Hundreds of Agarwal families come together every year, not for a celebration, but in search of one. The Agarwal Sammelan, North India's biggest matchmaking event, is held once every 5 years. A gathering of one of India's most prosperous communities, now united by a growing crisis: delayed marriages. In a time when digital matchmaking apps promise convenience, many families are returning to traditional community led matrimonial meets to find life partners. The All India Agrawal Society has organized one of India's largest matrimonial sammelans in Jind, Haryana, drawing over 1,000 marriage entries from across 18 states of India, Nepal, and other countries. For decades, these community specific events have played a key role in arranging marriages. But now, with skewed gender ratios, delayed marriages, and the disappearance of traditional mediators, the stakes are higher than ever. Families say it's becoming increasingly difficult to find suitable matches online or through informal networks. Organizers and participants believe these sammelans offer a space where serious prospects can connect, cutting through the noise of dating apps. But beyond matchmaking, they reflect larger societal shifts, where modernity and tradition are both in play and the pressure to get married remains intense. Families worry that their children are not getting married at what they call the right age. Some struggle to find suitable rishtas, others reject the very idea of arranged marriage. In response, Agarwal community leaders have turned to a modern solution rooted in tradition: a mass matchmaking event that brings together thousands of eligible candidates. This Sammelan provides a space to revive trust and transparency, to replace the lost network of elders and matchmakers in a world now shaped by busy nuclear families and changing social dynamics. और हमारा ये मानना है परीक्षा सम्मेलन के अगले 3 महीने तक काफ़ी रिश्ते मैच्योर होते हैं। जहाँ 1000 परीक्षा सम्मेलन के प्रत्याशियों ने फार्म भरा है, वहीं इसमें से सैकड़ों रिश्ते मैच्योर हो जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि हम जितने भी परीक्षा सम्मेलन करते हैं, उन परीक्षा सम्मेलनों के लगभग 5 महीने 6 महीने के बाद उन एंट्रियों पर हम फ़ोन करते हैं, उनका रिस्पॉन्स लेते हैं। तो उनके माँ बाप का ये कहना होता है कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को मिल रहा है। जब पिछले साल करनाल में हमने परीक्षा सम्मेलन करवाया, उसके बाद जब उनके माँ बापों से हमने बात की, तो लड़कियों के अभिभावकों का ये कहना था कि कहाँ हमें एक रिश्ता भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन परीक्षा पुस्तिका में छपने के बाद 200 300 फ़ोन हमारे सामने आने लगे हैं और हमारे सामने इतनी ऑप्शन आ गई है कि हमारे पास रिश्ता करवाना बिल्कुल आसान हो गया है। और ज़्यादातर जो परीक्षा सम्मेलन है, परीक्षा सम्मेलन के माध्यम से होने लगे हैं। ये समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये काम पहले बुज़ुर्ग लोग करते थे, अब बुज़ुर्ग लोग पीछे हटते गए, क्योंकि जब वो रिश्ता करवाते थे, अगर रिश्ता अच्छा चल जाता था तो भगवान की मेहरबानी बोल देते थे। अगर रिश्ता 2 साल 3 साल के बाद ख़राब हो जाता था तो उसका जो ठिकरा है वो बिचौलियों पर ठहरा दिया जाता था, उनके खिलाफ मुकदमे तक दर्ज करवा दिए जाते थे। धीरे धीरे बिचौलिए पीछे हटते गए। अब ये जिम्मा हमारे युवा साथियों ने लिया है। हम अपने काम धंधे छोड़कर, अपने खुद के पैसे लगा कर इतना बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और हम भगवान से ही चाहत रखते हैं कि समाज में कोई भी बेटा बेटी इतना लेट ना हो जाए कि उसकी उम्र 35 40 साल हो जाए। क्योंकि मैं मानते हैं समाज में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि उस बेटे बेटी की शादी नहीं हो पाती। जो 35-40 साल का हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्राइम की दुनिया में भागता है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे और समय पर लड़के लड़कियों के रिश्ते हों तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं क्राइम भी कम हो जाएगा। कई समाजों के लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, दूसरी बिरादरियों के फ़ोन हमारे पास आते हैं, जी आप हमारा भी फार्म भरवा लीजिए। हमारा ये कहना है कि एक समय में एक ही बिरादरी का प्रोग्राम हो सकता है, एक समय में 2 या 3 से ज़्यादा प्रोग्राम नहीं हो सकते। For many, these events bring clarity and possibility. With a modest registration fee, candidates receive detailed biodata booklets allowing them to explore matches within their own community. Verification and personal choice remain key. Nothing is taken at face value, but there is also a clash between generations. देखो, एक ज़माना था जब हम हमारी गुड़िया जैसी बेटी को, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ, थाली में परोस के कभी मंदिरों में, कभी धर्मशालाओं में, कभी होटलों में लेके जाते थे। और लड़के वाले आते थे, कभी नंदे देखेंगी, कभी बहनें देखेंगी, कभी भाभी देखेंगी, और हमारी गुड़िया का एक तरह से मजाक उड़ता था और रिजल्ट नहीं निकलता था। बोलते थे हम जाके जवाब देंगे। हमने इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए वी स्टार्टेड दिस परिचय सम्मेलन, विवाह योग्य अग्रवाल योग युक्तियों के परिचय सम्मेलन। इन कुरीतियों के लेके 2 प्रस्ताव पास किए जो पूरे देश में चले। एक तो मैरिजेबल एज बॉयज़ एंड गर्ल्स की शुड नॉट बी मोर देन 25,
कि 25 साल में हमें लड़के लड़की की शादी कर देनी चाहिए। इसके मेडिकल परिणाम भी बहुत दुष्परिणाम हुए हैं आगे जाके फैमिली बढ़ाने के लिए, और दृष्टि से भी डॉक्टर्स ने कहा है कि जो 30, 35, 40 साल में शादी होती है वो कामयाब नहीं रहती, और उसमें आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ डाइवोर्स भी बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि वो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग नहीं बन पाती। और दूसरा हमने प्रस्ताव पास किया, जो आजकल शादी से पहले प्री वेड शूटिंग जो होने लगी वो इतनी बड़ी कुरीति हो गई है कि बहुत रिश्ते टूट रहे हैं। मुझे माफ़ करेंगे बेटा कि शादी हुई नहीं, लड़के लड़की को प्री वेड शूटिंग के लिए, यहाँ छोटा शहर है मैं नहीं कह सकता, दिल्ली बॉम्बे में रोज देखते हैं, कहीं होटलों में भेज देते हैं, कहीं क्लबों में भेज देते हैं, कहीं गार्डन में भेज देते हैं, और अब तो पैसे वाले प्री वेड शूटिंग के लिए श्रीनगर यहाँ नहीं स्विट्जरलैंड तक भेज रहे हैं। लड़का लड़की जा रहा है, एक जन साथ गया, एक हफ्ते साथ रह रहे हैं, इतने घुल मिल गए, एक दूसरे के मन की सारी बात कर लेते हैं, तेरा बॉयफ्रेंड कौन था, तेरी गर्लफ्रेंड कौन थी, और जब वापिस आते हैं और जब सब बातें माँ बाप को बताते हैं, जब तक उनके रिश्ते टूटने लायक हो जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ केस में आपको ऐसे बता सकता हूँ, प्री वेड शूटिंग करके आए और आगे रिश्ते टूट गए। For organizers like Rajkumar Goyal, this challenge goes beyond matchmaking. It's about preserving social fabric, combating loneliness, and ensuring timely marriages. Goyal and his team have dedicated decades to these sammelans, creating dignified, transparent spaces where families can meet and meaningful relationships can begin. The All India Agarwal Society is not just focused on matchmaking, they're also pushing for social reforms within the community. According to Rajkumar Goyal, president of Haryana wing of the society, one of their key demands is that women should not be required to change their surname after marriage. He argues that changing the surname leads to the loss of identity for women. The roots of this movement trace back decades to Pradeep Mittal, who pioneered public matchmaking events to replace humiliating and outdated practices of the past. His vision brought dignity and choice to the process, transforming how matches are made in a community steeped in tradition yet facing modern challenges. अगर आप कोई वैसे बात करें कि किसी ने प्रोग्राम करना है, मिलाप करना है, तो बहुत मुश्किल से आप ही एक दूसरे से मिल पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई प्रबंध होते हैं, उसमें एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल, बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप बात करें कि अंदर 2-3 परफॉर्मेंस हुई है, बहुत अच्छी नाटक परफॉर्मेंस हुई है, तो उससे और भी ऐसा लगता है कि आप इनसे मिलना चाहिए, आप इनसे बात करनी चाहिए और मिल जुलना चाहिए, अग्रवाल समाज को और साथ में जुड़ना चाहिए, ताकि हमको पता लगे कि अग्रवाल समाज छोटा नहीं बहुत बड़ा है। देखिए हाँ, अभी तक हमको 1-2 पोटेंशियल मैच मिले हैं, तो ऑब्वियसली ये पुस्तिका हमको मिल चुकी है, तो इस पुस्तक अकॉर्डिंग हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद वो जो भी बड़े हैं वो पूछ पड़ताल की जाएगी, देखा जाएगा कि वो ठीक है नहीं है, वो सारा काम घर वालों का होगा। बट ये है एक अग्रवाल समाज का ये जो सम्मेलन है, इससे हम एक दूसरे से मिल पाए हैं, एक पुस्तिका मिल पाई है, एक कनेक्ट हो पाया है, तो ये अग्रवाल पुस्तिका इसकी वजह से ही हो पाएगा ये। At this matrimonial meet, families moved through the venue carrying a mix of emotions. Some came filled with hope, believing they might finally find the right match. Candidates, often appearing hesitant, held booklets containing detailed profiles of prospective matches, information on age, education, family background, and income. These booklets became their guide in a structured search for compatibility amid the overwhelming crowd of over 2,000 attendees. Every conversation, every exchanged glance was driven by the shared, unspoken goal of securing a suitable alliance. Today, the dynamic have shifted. More men attend than women, as many women pursue higher education and careers, raising expectations and widening compatibility gaps. This imbalance has made it urgent to adapt traditional matchmaking to modern realities. For the Agarwal community, these sammelans are more than just matchmaking. They are a way to preserve culture, strengthen bonds, and fulfill a shared duty before time slips away. Each arranged marriage is seen as both sacred and socially unifying. This is Sakshi Mehra reporting from Jeend, Haryana.